Come on, let's continue with difficult problem. Okay, sir. Right से संभाल. Continue with single entry system. Very difficult sums. Okay, what is single entry system? You guys remember? What is single entry system? कैलकुलेटर नहीं है, वापस भूल गए तुम लोग. ये किसका है? खाना पीना. सॉल्ट ये तो भूला है. कोई और नहीं है तुम्हारे अलावा? कोई और लेक्चर? क्या दुबई? अभी थोड़ा और टफ सम. व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? इज देयर एनी सिस्टम लाइक सिंगल एंट्री? No. Whenever you divert from double entry, it is called as single entry. But for theory, we divide the single entry system into 3 parts. Please focus. What are those 3 parts? One is pure single entry, simple and causal. Pure में क्या होता है? Only personal, only debtor creditor. Personal accounts are shown. In simple, we show debtor creditor and cash back. And in quasi, we show personal, cash books and subsidiary books. All the 3 we are supposed to show. Correct? Now, we saw in the chapter we are supposed to calculate इसका profits. बराबर है? तो profits ढूंढने के 2 तरीके हैं. एक होता है net worth method, एक होता है conversion. What do we do in net worth method? So in net worth method, हम लोग उसका कैपिटल से उसका प्रॉफिट ढूंढते हैं. इनकम एक्सपेंस तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है. We try to get his profits from the capital approach. So we need 2 capitals. So capitals ढूंढने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? Statement of affairs. What is the difference between a statement of affairs and a balance sheet? Estimated values and accurate values. Balance sheet is all pro forma, मतलब आपके documents, vouchers, journal, ledger से बन के trial balance से आपका balance sheet ready होता है. Please focus. And in your statement of affairs, it is all estimated basis. कुछ accounts है उसके पास, debtor, creditor, cash bank है, बाकी सारे estimated basis पे. Okay? एस्टिमेटेड बेसिस पे उसका बैलेंस शीट बना के वी ट्राई टू गेट हिज कैपिटल. एक बार कैपिटल मिल जाए, ड्रॉइंग्स मिल जाए तो प्रॉफिट्स मिल जाए. दैट वाज द फर्स्ट टाइप. दैट वाज कॉल्ड एज नेट वर्थ मेथड या कैपिटल अप्रोच. ठीक है. दूसरा वाला हमने क्या लर्न किया? कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन इज नथिंग बट कन्वर्ट एवरीथिंग फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल. कन्वर्ट एवरीथिंग फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री. एवरीथिंग विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स. तो इसमें आपका अप्रोच क्या होगा कि आप लोग लेजर्स बनाओगे. कौन से लेजर्स बनाने हैं? तो डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी अगर है तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश बुक. ओके. बैलेंस शीट कभी एक कभी 2. कैपिटल दिया है तो एक, नहीं दिया है तो 2 बैलेंस शीट. एंड कैश बुक, कैश बैंक अकाउंट के लिए कैश बुक. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट थिंक वी डिड 1 प्रॉब्लम यस्टरडे. उनको शीट नहीं मिला है ना? कहाँ गए? हाँ, लेके जाना. All of you now take some number. Ten तो किया था. 11 समझे.
11 की प्रॉब्लम ले लो, ध्यान से देखना. Mr. A runs a business of ready-made garments. 11th sum. He closes the books of accounts on 31st March. The balance sheet as on 31st March 2021 was as follows. Bella? Did you get it? So आधा balance sheet इधर है, आधा इधर है. You are furnished with the following information. His sales for the year ended were so and so, 20% higher than the sales of previous year, out of which 20% were on cash. Total sales during 2021 were 5 lakhs. Payments for all the purchases were made by checks only. Please underline that. Payments for all the purchases were made by checks only. इसका मतलब क्या पता? सारे पेमेंट्स बैंक के थ्रू जा रहे हैं परचेज के. Goods were sold for cash and credit both. Credit customers pay by checks only. तो debtors जो है वो भी चेक से दे रहे पैसे. Depreciation on furniture to be charged at 10%. Mr. A sent to the bank for collection of the month at the last date of each month after paying a salary of 2,000 to the clerk, office expenses of 1,200 and personal expenses of 500. इसका मतलब क्या है? हर महीने वो बंदा क्या करता है? सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस पे करने के बाद जो बचता है पैसा उसको कहाँ डाल देता है? बैंक फॉर कलेक्शन. व्हाट इज बैंक फॉर कलेक्शन? वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज में था, यहाँ पे उसका मतलब क्या? वापस पढ़ो. मिस्टर ए सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक द कलेक्शन of the month at the last date of each month after paying a salary of 2,000 to clerk, office expense and personal expense. इसका मतलब कैश डिपॉजिट कर देता है. ये खर्चा हर महीने का पे करके वो कैश बाकी का डिपॉजिट कर देता है बैंक. बैंक फॉर कलेक्शन ही है, बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ. मतलब जो भी आपका कलेक्शन है वो आपका बैंक में डिपॉजिट कर देता है. एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022 disclose the following. Payment to creditors, payment of rent up to 31st March and cash deposited into the bank during the year. तो ये क्या है आपका डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम पासबुक. तो पासबुक से ये डेटा अवेलेबल है. तो ये सारा चीज किसके थ्रू होने वाला है? मतलब बैंक के थ्रू होने वाला है. पासबुक का डिटेल्स मतलब बैंक के थ्रू होने वाला है. Following are the balances on 31st March 22. What are 31st March 22? Opening की closing? Closing. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये सब क्यों नहीं बनाओगे? कैपिटल दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस शीट ही बना के दे दिया. एनपीओ में भी देते थे यार, कैपिटल दिया हुआ. लेकिन एवरी आइटम ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट. एक उधर, एक LYSY. ओके. देन on the evening of 31st March 2022 the cashier absconded with the available cash in the cash book. बेचारा नॉर्मली क्या करता था, इसलिए डर के मारे हर महीने वो जाके बैंक में जमा करके आता था. 80,000 रुपए तो उसने कैसे तैसे जमा कर दिए ड्यूरिंग द ईयर. लास्ट डे पे लेकिन क्या हो गया? कैशियर अब्सकॉन्डेड द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक. इसका मतलब जब आप कैश बुक बनाओगे, व्हाट इज कैश बुक? कैश एंड बैंक अकाउंट. कैसा दिखता है? डेबिट साइड रिसीट्स, क्रेडिट साइड पेमेंट्स. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मिसिंग फिगर आते हैं. डेटर में मिसिंग फिगर आता है, सेल हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है. क्रेडिटर में मिसिंग फिगर आ सकता है, परचेज हो सकता है, पेमेंट हो सकता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में मिसिंग फिगर BRBP में आ सकता है, बिल एक्सेप्टेड, बिल पेड या रिसीव्ड. रिमेंबर, वैसे ही आपके कैश बुक में भी मिसिंग फिगर हो सकता. स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया. तो जनरली वो ड्रॉइंग से कैपिटल होता है या कैश परचेज कैश सेल होता है. लेकिन इस प्रॉब्लम में आपको हिंट दे दिया है कि अगर कैश बुक का लास्ट में मिसिंग फिगर आए तो वो क्या है? लॉस बाय थेफ्ट. वो कैश कॉलम में, बैंक कॉलम का तो बैलेंस दे दिया, पासबुक से मिल जाता है. बट कैश कॉलम में डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट मतलब पैसा आया, क्रेडिट में सपोज डेबिट में 50,000 आया, क्रेडिट में 40,000 गया फॉर एग्जाम्पल. तो बचा कितना? वैसे तो वो 10 क्या करता था ये सब एक्सपेंस पे करने के बाद?
बैंक में डालता था, बट यहाँ पे लास्ट डेट पे क्या हो गया, कैशियर अब्सकॉन्डेड द कैश। तो मतलब 50 आया, 40 गया, और सपोज बचा 10, तो वो 10 क्या है, चोरी हो गया, लॉस बाय, मतलब बैलेंस कुछ आएगा, मतलब बैलेंस कुछ नहीं आएगा। कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो। क्यों, कैश में कोई बैलेंस नहीं आ सकता, जितना था वो लेके भाग गया। तो दैट्स योर हिंट कि भैया बैलेंसिंग फिगर जो है वो बैलेंस नहीं है, ना ही डिपॉजिटेड है, इट इज लॉस बाय कैशियर अब्सकॉन्डेड द कैश। समझ में आया वो स्टेटमेंट का मतलब? ऐसा कुछ हिंट दिया होगा, तो ऐसा वेग असम्पशन नहीं है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, एक ही चीज पे आप लैंड करने वाले, ठीक है। On the evening, okay. Or you are required to make trading P&L and balance sheet. Working should be a part of your answer. हम लोग तो करेंगे ही वर्किंग। अभी ये सब में आपको क्या क्या बनाने का है, एक तो अपना कॉमन है डेटर और क्रेडिटर, वो तो ड्रॉ ही करना है। डेटर्स अकाउंट 6-7 लाइन का, और क्रेडिटर्स अकाउंट 6-7 लाइन का, वो तो बनाने का ही है। इसके अलावा है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पिछले सब में नहीं बनाई थी आपने, लेकिन ये सब में बनानी है। क्या है वो पता है? कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक बोले तो कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश बुक बोले तो ये थोड़ा बड़ा बनाना, कैश बुक मतलब एक ही साइड पे 3 फिट कर देना, ये छोटू छोटू ये बड़ा, डेटर क्रेडिटर छोटू छोटू, और कैश बुक थोड़ा बड़ा। डेटर क्रेडिटर छोटू छोटू और कैश बुक बड़ा। सॉरी, कैश बुक याद है किसी को, हम लोग करते थे, उसमें सारे कॉलम्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ इतना करना है। This is receipts and this is payments. It's basically your receipt and payment account, but with 2 columns, cash and bank. डेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल ईयर का समरी करते हो। LF, RNO, VNO वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। Remember, cash book was a journal as well as ledger. तो जर्नल तो है ही, साथ में वो लेजर ही है, तो यही कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर ही है, कैश और बैंक का लेजर बना रहे हो, समझना है? दिस इज डेटर अकाउंट, दिस इज क्रेडिटर अकाउंट। दिस इज ट्रेडिंग, 2 balance sheets or 1? 1. This is P&L and this is balance sheet as on 31st March 22. हाँ जी, ट्रेडिंग तो छोटा रहेगा आपका 6-7 लाइन का। आई थिंक P&L बैंक नहीं हो रहा है तो ट्रेडिंग P&L एक तो बना, बैलेंस शीट दूसरे पे, ट्रेडिंग P&L ऑन वन साइड एंड बैलेंस शीट ऑन अदर, वो तो जाना चाहिए। ये थोड़ा छोटा है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ऑलमोस्ट सेम, बट अगर नहीं थोड़ा हैंड राइटिंग का है तो ट्रेडिंग P&L एक पे बना लो, बैलेंस शीट स्पेशियस रखो उसको, खिचड़ी खिचड़ी नहीं लगना चाहिए, ज्यादा स्पेस में वो लाइन वाइन छूट गया तो चलेगा, खिचड़ी नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग P&L एक पे बना लो, बैलेंस शीट नेक्स्ट पे बना लो, क्लीन नीट एकदम होना चाहिए। P&L में 10 लाइन छोड़ो छोड़ो, एक पेज पर ट्रेडिंग एंड P&L करो और एक पेज पे बैलेंस शीट करो।
स्पैम कॉल तो एकाएक में मैगडी में आता उठा रात को 11:30 बजे जाते चलो आ जाओ ते कोई ना कोई अरे मैं उधर गया था शाहपुर तो उधर वो मेरे को मिल गया वंश सोनी बोला नहीं पूरा चलो अभी लेट्स बिगिन। सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो शुरू करते हैं डेटर्स के साथ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स यू विल फाइंड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर्स? इट इज 1 लाख। सो डेटर्स में आएगा टू बैलेंस बीडी दैट इज 1 लाख। आराम से फूक फूक के एवरीथिंग विल हैव 2 इफेक्ट्स। इसका सेकेंड इफेक्ट है ना, कहाँ होगा बता? ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर बैलेंस। उसको टिक कर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा? ओपनिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट हो चुका है, लास्ट ईयर का बैलेंस। डेटर और क्रेडिटर सेम नहीं रहता है ना, वो तो पैसा देके चला गया। अभी यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो करंट ईयर में। ओपनिंग विल गो टू लास्ट ईयर, क्लोजिंग विल गो टू करंट ईयर। जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, फिक्स्ड, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जो करंट एसेट होते हैं वो तो चेंज हो जाएंगे ना। स्टॉक तेरा थोड़ी शुरू वाला एंड में सेम रहेगा। डेटर का बैलेंस सेम ही रहेगा, पैसा दिया, सेल हुआ, फिर लास्ट में जो बचा वो देखे। क्रेडिटर भी सेम, बीआर भी सेम, करंट एसेट करंट लायबिलिटी चेंज। समझ में आया? फिर डेटर के बाद क्रेडिटर देखो। क्रेडिटर का आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कितना है? 82,000। अच्छा, इसका भी सेकेंड इफेक्ट है। लास्ट ईयर लायबिलिटी हो चुका है। ओके, रिमोट तो नहीं लिया ना पीछे किसी ने? कौन लिया? मेरे को आवाज आ रहा है। लाओ इधर, तो वही कूड़े में बैठने का सब। लाओ इधर, रिमोट लाओ। सर एक सेट करके दे रहा हूँ। रिमोट लाओ। एक सेट करके दे रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ सेट। लाओ, भेजना। सर पूरा ऐसा ऐसा मेहनत पढ़ाई में। मोड चेंज मत करो, मैं बोल। हाँ, पानी टपके दिया मैं। चलो, सर ये तो पूरा पूरा कर दिया मैंने। एसी नाउ लिसन। अपना कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस ध्यान से देखो। टू बैलेंस बीडी, कैश कॉलम इट इज 28 एंड बैंक कॉलम इट इज 38 मिला। सो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो लास्ट ईयर एसेट फुल। बैंक बैलेंस शीट में उसे कैश जीरो। हाँ, क्लोजिंग में कैश जीरो हो जाएगा, बैंक बैलेंस दिखेगा। क्यों कैश जीरो हो जाएगा? क्योंकि स्टोरी। चलिए, कैपिटल दिया हुआ है, एज कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट से बाकी देख लो। अभी बैलेंस इसको लिख लिए। एज कैपिटल कहाँ जाएगा? एज कैपिटल आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स ये साल का क्रेडिटर हो गया, कैश बैंक डेटर हो गया। स्टॉक और फर्नीचर बचा। फर्नीचर लास्ट ईयर एसेट में था, वहां से उसको लेके आओ किधर? करंट ईयर एसेट। इनर की आउटर कॉलम यू नो वाई। हाँ जी, डेप्रीसिएशन है। कल भी किया था, याद है? ये इनर कॉलम में दिखाना है। डेप्री है, एडजस्टमेंट है तो इनर, नहीं तो आउटर।
एडजस्टमेंट अभी करना है अभी कर सकते हो, एंड में करना है एंड में करो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सब चीजों का दो इफेक्ट चाहिए। स्टॉक लास्ट ईयर एसेट में है, मतलब वो कौन सा स्टॉक हुआ, तो उसका सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा। बहुत फर्क याद है आपको। टू ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच, 2,80,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? 2,80,000 सॉर्टेड है। चलिए अब जाते हैं एडिशनल इनफो। ध्यान से पढ़िए, इट्स वेरी सिंपल, वो पढ़ने में थोड़ा लगेगा। His sales for the year 31st March 22, मतलब current year, were 20% higher than the sales of previous year. Out of which 20% sales were cash sales. मतलब जो भी था 20% ज्यादा था, उसमें 20% कैश 20% क्रेडिट का था। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 में भाई, अभी पिछले साल का सेल का हम लोगों को लेना देना नहीं है, उसके मदद से व्हाट यू कैन कैलकुलेट दिस ईयर का सेल्स। सो मेक अ स्मॉल नोट, सेल्स फॉर 2021 were 5 lakhs. So can you tell me, sorry, sales for 2022, I mean 21-22, 6 lakh. therefore sales for 21-22 20% higher है, तो 5 lakh plus 20%, that is 6 lakhs. Is this clear? अभी इस 6 lakh में ना 20% are what? Cash and 80% are credit. So I think 1,20,000 is cash and 4,80,000 is credit. ये समझ में आया? ऐसा एक एग्जांपल भी हमने लास्ट लेक्चर देखा था क्लास में, छोटू डेटर का क्रेडिट पीरियड से शेयर ढूंढा, फिर कैश क्रेडिट निकाला। सो 20% 1,20,000 is cash and 480 is credit. Sorted है। अभी दोनों का दो इफेक्ट लेना है। बोथ आर ट्रांजैक्शंस डन थ्रू आउट द ईयर। कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कैश टू सेल्स। तो पहले वो खत्म करते हैं, कैश टू सेल्स। तो फिर कैसे होगा कैश टू सेल्स? कैश में टू सेल्स और सेल्स में बाय कैश, लेकिन सेल्स तो है नहीं, तो कहां जाएगा सेल्स? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय सेल्स कैश बेसिस कितना आएगा? 1,20,000 बराबर है। सी पॉइंट